Can I start now? Yes, sir. Now you can start. Okay. Thank you everybody for again a post-lunch session of Organon. So again, it's a big thing that someone should not sleep. Sanjay sir, He's there. He's there. संजय सर कुठे गेले? ते झोपले की? He must be having his lunch. Okay, no worries, no worries. ठीक आहे. सुरू करूया आपण सगळेजण. Yes, sir. सगळ्यांचं स्वागत आहे. Basically, I am not going to take anything new today. I am just brushing up some of the things which require to be cleaned, and there are so many things which goes into our subconscious. But when it comes to case and when it comes to prescribing, sometimes we don't apply those things in practice. So today I am just brushing it up. I'm not talking anything new. All the facts are there. The literature is there. The books are there. We have already learned this in our UG. We have already went through all this when we were studying the Organon. Then in the BHMS course, some of you are also done the MD. So we have already brushed it up in when we are studying the PG courses. But when it comes to prescribing, sometimes it happens that that something goes in the back and we are not applying in practice. So unconsciously that becomes not being applied, and then in we are become the cobweb, and it is very difficult to get out of it. Yes, we all our mentors, they tell us that how to differentiate drugs, how to apply the correct rubrics. Yes, perfect. But this is also sometimes helpful that sometimes we make wrong decisions. We have all the ability, we have applied the rubric correctly, we have also come down to the correct medicine, but sometimes this particular things somewhere thoda sa kuch galat ho jata hai, and the whole thing gets become confused. So the first problematic thing is when the treating doctor is in confusion. So when he is confusion, the complete flow chart below is made up of confusion. So let us try to brush up certain things which I thought it is necessary for us to at this moment, because there were a lot of queries regarding the organ on potency selection, repetition, when to repeat, when to wait. We are waiting where it is required to prescribe, and we have prescribed something where it was required to wait. This is very easy to talk and do a presentation, but when the patient is literally in front of you, sometimes the patient uh, just present the things in so vivid colors that we get trapped. काहीच आराम नहीं है. We have seen that Kent has said that we are not here to learn the opinion of the patient. आम्ही दवाखान्यामध्ये पेशंटचं ओपिनियन घेण्याकरता बसलो नाहीये. We are here to know the affair of symptoms. What has happened to the symptoms? And patient may get you out of the track, but the symptoms cannot. And that's why it is said that the symptom is the only guide for a homeopathic doctor. It's like a compass that we will tell that we will know rather where you are heading. You are heading towards the cure, or something has went wrong, or what exactly we should do this particular moment. Time is very important, because homeopathy, you will see time management or time factors are most important. Misms, we don't use it in this system, but also is a parameter of time. How the SORA, then the syphilis and psychosis. So this is a parameter of time. Even susceptibility is also a parameter of time. Vital force, we will come, this is another phase, this is not the topic of today, but we see that the time is most important, isn't it? Susceptibility in one case different in two individuals, and one individual at different two times. Your susceptibility today is not going to be the same tomorrow. Okay, so it differs. So these are
the phases of time. How it is the phases of time, if required, we'll discuss, but that's not our topic. Our topic today is very much clear. This is our topic today, how to select an appropriate potency to a case. ऐसा कोई दिन नहीं होता है कि हमें ये क्वेश्चन सामने नहीं आता है. एवरी डे वी हैव दिस केस टू बी, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नीड टू बी फेस्ड कि इसको देना क्या है, देना क्या है, बट दैट देना क्या ही मस्ट बी इन सम पैकेज, must be in some material dose, and that material dose is nothing but the potency. In homeopathy we use it not in mgs, but we use it in centesimals, or last time we have seen in 50 millisieverts. So some medicine has to be given to this particular case. Now what is an appropriate potency? Appropriate means it should be stronger than the natural disease. Badi to can't be. When it is not higher than the natural chronic diseases or natural disease for that matter, it's not going to eradicate. The medicine has to be powerful than the one which needs to be cured, that is the disease. So the medicine or the potency should be stronger, that is the truth and nothing but truth. At the same time, it should not be strongest. We have seen this in homeopathic aggravation last time when we have studied the 50 millisieverts potencies, that it should be stronger, but it should not be that much stronger that ये तो ठीक कर दिया, but उसके पहले बहुत कुछ हो गया, that extra. So Hahnemann was very much keen on that particular, and he has worked on this particular in 1838 to 1842, 1 year before his death, 43. So he has worked only on that कि homeopathic दवा स्ट्रॉन्ग कैसे बने जब ताकि वो नेचुरल डिसीज को ठीक करे, और इतनी भी स्ट्रॉन्ग ना बने कि वो और कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट्स पैदा करे. ठीक है, यहाँ तक हम कुछ देखे भी थे लास्ट टाइम. प्रतीक सर, आई एम गोइंग ओके? Yes, sir, absolutely fine. Okay, good. So we are dealing today how to select an appropriate potency to a case. Number 2, we'll throw some light on understanding and arrangements in homeopathic aggravation. So we have to understand what the patient is going through. कधी कधी काय होतं की आपल्याला समजतच नाही की हे होऊन काय राहिलंय, काय होऊन राहिलंय हे न समजल्यामुळे पुढे करायचं काय हे समजत नाही आपल्याला. आपल्याला तर पहिले समजून गेले की हे काय होऊन राहिलंय केसमध्ये, त्या 12 ऑब्झर्वेशन पैकी नक्की कुठे अडकलाय पेशंट, हे कितवं ऑब्झर्वेशन आहे, त्याला कुठलं अप्लाय करू शकतो आपण. आणि म्हणून आता सगळे आपण प्रॅक्टिशनर आहे, पण याच्यामध्ये जर काही स्टुडंट असतील तर मी म्हणतो की तुम्ही हे ओपीडी मध्ये आणि आयपीडी मध्ये अप्लाय करा. जोपर्यंत तुम्ही शिकणार नाही तोपर्यंत इट इज नॉट गोइंग टू गेट युअर वे. सो ट्राय टू अप्लाय द थिंग्स इन प्रॅक्टिस. आपली सिलेक्शन करण्याची पद्धत प्रत्येक स्कूलची वेगळी असेल. कोणी हे म्हणतं, कोणी ते म्हणतं, कोणी मेंटलला देतं, कोणी फिजिकलला देतं. एक कन्सेप्ट बोनिंगुसेनची आहे, त्याच्यामध्ये ग्रँड जनरलायझेशन आहे. तो माइंड काहीच बघत नाही, फक्त फिजिकलला, आणि ते जनरलाइज करून आपण देतो जे आपण शिकलोय बोनिंगुसेनची मेथड. केंटनी पर्टिक्युलर्सला खूप जास्ती म्हणजे इम्पॉर्टन्स दिलं, कॅरेक्टरिस्टिक पर्टिक्युलर्स. आपण जरी केंटला म्हटलं की आपण मेंटल 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 करतो, पण तुम्ही सर्वात जास्ती कॅरेक्टरिस्टिक पर्टिक्युलर्स जर असतील तर फक्त केंट रेपर्टरीमध्ये आहे. फॉर एक्झाम्पल आपण नुसतं हेड, पेन, त्यानंतर आपण हे बघू शकतो, समजा बर्स्टिंग किंवा बर्निंग किंवा थ्रॉबिंग, मॉर्निंग, ओल्ड पीपल ऑफ. यू कॅन सी हाऊ कॅरेक्टरिस्टिक ही इज मेकिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, देर इज अ प्रॉब्लेम इन द हेड. What is that problem? That problem is that pain. So second rubric is pain. Then what kind of pain? Yes, it is a throbbing sort of pain. Throbbing sort of pain when in the morning. When in the morning, old people in. फक्त वृद्ध लोकांमध्ये एवढं सगळं होतंय. So this particular fashion you will see more in Kent rather than in Boningosen. Or Prasad sir.
I think some technical error has come. Network issue. Maybe. Yeah. Dr. Pallavi, some technical issue is at the end of Dr. Prasad. Okay, we shall resume. Okay. Okay. Let me call him. I guess we lost the connection. He will join back. Okay. Yes, Dr. Sheetal, there is no voice because he has disconnected. There is a heavy rain in Nagpur. I just called him. He's saying there is a heavy rain in Nagpur. That's why he lost the connection. He's connecting back in 2 minutes. Anybody having any language issue? Because Dr. Vyawar is talking few things in Marathi also. Is there anything, any problem regarding that? Anybody? No issue. No issues? Yeah, generally the Marathi people have no issues, but anybody who is non-Marathi and having an issue to understand his language? Okay, किसी कोई कुछ बोल नहीं रहा है मतलब no issues. I'll consider it as no issues. Hello, Prasad sir. Yes, I'm back. Yeah. Back. Screen And you are- sharing there, sir. Yes, sir. You are co-host. You can go on. Yes. Why potentize medicine? First of all, that why we need to reach to that level. Yes, we all know why we potentize the medicines. So just again, I'm telling it's just a brush up. We have to go to this particular aphorism 31. What Hanuman has said, the inimical forces. Yes, disease is not a welcoming. Nobody says that I'm enjoying the disease. बहुत मजा आ रहा है. Don't cure me. I'm enjoying. No, these are the inimical forces. Which is partly psychical. Try to understand. This word has Hanuman has used in some 250 years back. That the inimical forces can also be psychical, partly physical, to which our terrestrial existence is exposed. Yes, we are exposed to all these enemies, isn't it? Which are termed morbidic noxious agent. Do not possesses the power of morbidly deranging the health of man unconditionally. So it's not possible tomorrow I wish that Pratik sir will have a diabetes and bring me the diabetes. It is not possible. It is not unconditional. It is conditional. That unless he satisfies the conditions, then only he can be a culprit of that particular disease. Okay, significantly disposed and susceptible to the attack. So this particular disease, he must be susceptible of morbific cause that may be present and to be altered in its health, deranged and made to undergo emotions and function. Hence, they do not produce disease in everyone
nor at all times. So that's why it's not possible that we all with the all same chronic disease everybody is having the issues. This is not possible because you have chronic disease, you have to have some conditions which need to be fulfilled. Later on in later aphorisms, Hanuman has explained that by the patient, then become a patient. Okay, so just to emphasize, brush up some things have this particular aphorism I have selected for today. This is nothing new, we have learned it again. Now the problem is that, Pratik sir, the diagram is okay, visible? Yes, sir. Okay, thanks. See, these are the two planes now I'm saying. This is the human is the disease. Okay, and this is the medicine. Now tell me, these are the two planes and I want these two person to fight. Can they ever be fight? One is the medicine or this particular person is at this plane and the another person is at this plane. Can they fight? Both are on another plane only. Yeah, Different. another plane. So they cannot fight now because of the difference of the plane. Some is on this plane, is on this platform, other is on this platform. So this is basically what allopathy does, that the disease is in the dynamic plane and the medicines are given in the physical plane. We all know this, but again, I'm just repeating because at the time of disease, when the patient is in front of you, try to understand this thing. We go after physical, yes, diagnosis is also important. Nosological diagnosis is also important. But we have to understand that how he moved from a healthy person to the now disease condition. And when we are reaching to the disease condition, we have to remember this plane. Okay? Try to understand this. Now, what is the solution? Because these two are different plane. This is the solution. Now they are coplanar. The disease in the dynamic plane and sorry, some correction is also required here. Medicine is at also the dynamic plane. Dynamic plane. Read this as the dynamic plane. Yeah. So we have studied potentization sufficiently. So see that disease causes exist among attenuated things. If the disease causes present in the attenuated things, the corrective measures should also be on the same level. It cannot be possible कि आग यहाँ पे लगी है और पानी आप दूसरी जगह डालोगे तो आग कभी भी नहीं बुझेगा. You see that? So the infinitesimal or immaterial substances, and thus the physician must see that the curative remedy must be on the same plane. So the medicine from physical plane to the dynamic plane. This is just the difference of how much degrees? 90. Yes, this is the only difference. And this from here to here is potentization. From here to here. Okay? So just I want to emphasize on the viewers that why we need. Okay? Now let's be serious about today's topic again. In Organon 34, Hahnemann repeat two propositions to which we have already alluded. First proposition is that in order to cure, the medicines must be able to produce in the human body an artificial disease similar to that which is to be cured. This has been fully illustrated and explained. This is the 34th aphorism in 6th edition. That there is no doubt. He has already made it clear in 26th aphorism ki what happened in nature when two similar diseases meet. Okay? And the one is stronger than the another. The stronger one just wipe out the weaker one, and the stronger one also with respect to time, because it's just a time factor. The dose will there for certain amount of sphere of action.
of time. So both will go. So at the first instance, the disease will go, and at the second instant, the medicine which is there, it has a time bound. It cannot be there for a long time or prolonged time or the whole of his life. So it will also be exhausted over a period of time. So that's why Hahnemann has never looked back कि शायद मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई, लॉ ऑफ क्यूर मैंने गलत तो नहीं बताया, अपोजिट तो सही नहीं है. So again he confirmed that the law of cure is law of similars. That's why he has said it has been fully illustrated and explained. So there has to be no doubt that your medicine should be similar. Now, this similar word we need to understand. If I had to teach this similar word to my first BHMS, I will tell that I have a case who is having the throbbing headache, and I will see that which medicine also creates the throbbing headache. So the throbbing headache will cure each other. That is, I can tell for the first year, because first year they are very new, they don't know what is similar, but just to emphasize on their mind, I will tell them that these two things should be similar. Now let's go beyond that, isn't it? Similar, we have schools of thought, we have different schools of thought. We, in particular, the Sehgal method, we say that what he says, how he says, when he says, why he says, isn't it? So we want to do this similar word to some other plane. Try to understand this. Some other school will take this similar. What two things should be similar? Isn't it? We have this mentor teaching us different drugs. Last time we learned the pulsatilla or nitramvir or bambusa, whatever. So we are learning the states. And these states, the state of the patient which has visited you, and the state we already understand through rubrics or through Materia Medica, we understand the state of nitramvir. So these two states must be similar. Okay, try to understand this. These two states must be similar. Now, some other school of thought may take this similar to some different. If I am a Bonnie-Gussen follower, I will say the physical symptoms should be similar. Isn't it? Hahnemann has given you the similar. Now, what similar? So that's why we have different schools of thought, different philosophies of thought, different people come up with different ideas. That's all okay. But here in Sehgal systems, we see that the states the patient lives in, isn't it, has to be similar. So that's why we ask, what do you think of your disease? तुम्हाला आजाराविषयी काय वाटतं? Isn't it? That he thinks that this is because of that. Then we apply some rubrics, and we have some group of rubrics which indicates that this is the state of the patient, where it has hurted, this particular problem usko kahan hit kiya hai. Because of this, I am not able to do my office work. So it can lead to some other rubrics. या मैं उस तरह से नहीं कर पा रहा हूँ. सो नक्स्वामी का हमने देखा कि वो बहुत ज्यादा एग्जीक्यूटिव या बहुत उसको अपने तरह से वो सब चीजें चाहिए रहती है. So we have to similar these things now, isn't it? In a more mature manner, I cannot tell that the two throbbing headaches should be clear, should be similar. In later on in our studies, try to understand हम लोग किसको compare कर रहे हैं. This similar word was very important. That's why I have taken this particular. आप बोल सकते हैं कि सर इसमें नया क्या है? नया कुछ भी नहीं है, but try to understand with the perspective. I am giving you the vision through which, if you see this, now go and read all these 30, 31, 30, and 34. You will be amazed to see that what Hahnemann was intended. And today what we are learning in 2021, उन्होंने कब का लिख चुका है वो. He could foresee. That's why you have to respect. Why I respect Hahnemann again? Because of this thing.
because of this, isn't it? Making medicine reach to the level of potentized is something I respect Hahnemann, because Hippocrates have already said in 12th century that disease can be cured either by similar or by opposite. This was nothing new. It was prevalent in the literature in the medicine that Hippocrates already told in 12th century that disease can be cured either by similar or opposite. But later on, the opposite get into fashion. Opposite got so popular, the similar went somewhere back. It's only written in the destiny of Hahnemann that he could take out from it, and not only take out, he has established a system of medicine based on the law of similars. Now, this was the first proposition, that the drug should be similar. There is no confusion. What this similar, I explained. Pratik sir, it's okay, the speed and everything? Yes, absolutely. Okay. Now, the second proposition is that the artificial disease must be greater degree of intensity. है ना? अब somebody छोटा वाला दारा सिंह को मारने जाएगा तो रिजल्ट सबको पता है, कौन जीतने वाला है? जो पावरफुल है वो छोटे को कभी भी दबाएगा. Correct. This is very understandable common sense. That the second proposition हनीमन ने बोला है, अगर आप पहला proposition मान्य करते हो, if you accept that the disease should be similar, similar का मैंने example बताया with respect to the difference. Okay? Now second proposition हनीमन बोल रहे हैं कि जो ठीक करने वाला है, त्याला बस होऊन दे व्यवस्थित वाटतं. जो जिसको ठीक कर रहा है उससे स्ट्रॉन्गर होना बहुत जरूरी है. ठीक है. नाउ यहाँ पे सब प्रॉब्लम आ जाता है, कितना स्ट्रॉन्गर, और स्ट्रॉन्ग मतलब क्या. अगर मैंने ऐसा किया है कि मैंने एक 5 mg का मेडिसिन दिया है, अब मेरे को उसको डोज बढ़ाना है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, ग्रेटर डिग्री करना है, इंटेंस करना है, तो मैं उसको 10 mg देता हूं. क्या ये है इंटेंसिटी की परिभाषा? क्या होम्योपैथी में भी डिग्री ऑफ इंटेंसिटी को हम लोग इस तरीके से देखें? यही समझे हम लोग जो एलोपैथी का प्रोपोजिशन था. इसलिए यहाँ समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग इंटेंसिटी का मतलब क्या है. द सेकंड प्रोपोजिशन इज दैट द आर्टिफिशियल डिसीज थ्रू मेडिसिन ऑफ कोर्स मस्ट बी ग्रेटर. ग्रेटेस्ट वर्ड नहीं है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो ग्रेटर आया है, ग्रेटर देन नेचुरल डिसीज. ओके. ग्रेटर डिग्री ऑफ इंटेंसिटी, वो थोड़ा सा इंटेंसिटी उसकी बढ़नी चाहिए, और हाईली इंटेंस भी नहीं होना चाहिए कि द पेशेंट हैज टू सफर. ठीक है. अब इंटेंसिटी मतलब क्या? यू कैन नॉट measure the beautifulness, isn't it? That this particular lady is 3 kg beautiful than this lady. You cannot quantize these things. ठीक है. But when we are prescribing something, we need to quantize it. ठीक है. So Hahnemann has, how he has solved this particular, we'll see. What is intensity? The matter of intensity, this is I have taken from the Kent under the susceptibility chapter. You can go and read in your books. So the matter of intensity has already been explained as something higher, more internal, something superior or prior. I just want audience just to highlight these words, isn't it? Intensity, this particular artificial disease must be greater in its intensity. So what is intensity? Intensity in homeopathy, we read, we understand better that something which is higher, more internal, something superior or prior. Okay? That this particular more internal means going towards the vital force.
not going merely to the outer covering of physical plane. Okay, the medicine is now more intense, means reaching more to the core, reaching more to the innermost, which is superior. Vital force is superior than everything. So I have the medicine which works on to the superior, which is prior, isn't it? This is prior. Prior means somebody has intended you to be here and then the body has given. It is not that the body has already made and somebody has put it to animate. Okay, this is a philosophical part, but try to understand these things, because this prior word everybody can link to mythology again, going to the literature, Atma, Paramatma, and all these things. I don't want to go there, but I want to just imbibe on your thought process that what Hahnemann has intended. Intensity means what? 5 mg to 10 mg. This is intensity. What is intensity? So we have to understand as a homeopath, isn't it? Sometimes, many times rather, it has been made a mockery in the other systems of medicine that Hahnemann, this homeopathy gives medicines where there is not a single molecule present. That doesn't mean you have too many molecules, but what is the result? Molecule, if it cures, you have lot of molecules. You have all standardization labs, but even giving in molecules, you cannot achieve what we achieve by not showing the molecule into it. Showing and demonstrating molecule is not important. Something which is prior, something which goes there and starts the cure process. Something which eliminates this particular dynamic inimical forces, that is disease, and establish a harmony, a balance. It was a disbalance. So one which establishes the balance, that is required, and it cannot be done with 5 mgs and 10 mgs. Is that clear to everybody? This balance cannot be maintained with these allopathic drugs. You require something to that plane, the plane of disease and the plane of medicine. If it is like this, it's not going to fight. They cannot fight. Okay, these two planes. Here, somebody is here. They cannot fight. So you have to make it co-planar, which I already explained. But try to understand this particular word, which is prior. This take from other studies. Okay, shall we proceed now, Pratik sir? सर प्रसाद सर एक डाउट हेलो Yes, sir. Please go ahead. समथिंग हायर व्हाट डज हायर मीन ईयर Here, higher in its reach. Higher in its reach, where it reaches. मी बुटका माणूस आहे, माझी एक लेवल आहे, मी त्याच्यावरच्या फळीवर नाही जाऊ शकत. समथिंग हायर. Okay, something which is more internal. If it is a circle, you have the physical circle, you have the mind circle, you have the dynamic circle, isn't it? So something, the medicine should reach there. Okay, higher is propensity. You can say that the level of your medicines where they are reaching, the level of 6C and the level of 30C, there is a difference. Where 30C can reach, 6C cannot go. exactly I have a doubt regarding this only. That's why I asked deliberately. Okay. No problem, sir. Shall I proceed, sir? Yes. Okay. Particular word I have kept in bold. और मेरे क्लास के जो भी बच्चे होते हैं 3rd ईयर फाइनल ईयर के,
उनको मैं बोलता हूँ कि ये सेंटेंस आप बच्चे स्कूल में इसमें रहते हैं, रूम्स में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, उनको बोलता हूँ कि इसको प्रिंट करके लगा दो। ये उसी ससेप्टिबिलिटी चैप्टर से मैंने लिया है, नॉट समथिंग फ्रॉम मी। इसका मैंने कॉमा भी चेंज नहीं किया, कुछ नहीं चेंज किया। क्वेश्चन फिर से वही आता है कि पोटेंसी फिर कौन सी दे। व्यवहारे सर ने फिलोसॉफी तो बहुत अच्छी की है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुआ ना। ऐसा कोई भी स्लाइड नहीं दिखाया जिसमें हमको समझ सके कि कौन से पेशेंट को कौन सा पोटेंसी कैसे सिलेक्ट करना है। पोटेंसी कैसे सिलेक्ट करना है, फिर हम जब केन के पास गए तो केन से मेरे को ये सेंटेंस, intensity of power is proportionate to the degrees of approximation towards primitive substance. सगळ्यांना एक गोष्ट नक्की सांगतो की मी 10 वाचलं, मला ह्याच्यातलं काहीच कळलं नव्हतं. मी हे पर्टिक्युलर सेंटेन्स तुम्ही वाटलं स्क्रीनशॉट काढून घ्या, आणि नसेल तर तुमच्या पुस्तकामध्ये आहे, थर्ड लास्ट, सेकंड लास्ट किंवा थर्ड लास्ट फ्रॉम द चॅप्टर ऑफ ससेप्टिबिलिटी, 5 नंबरचा चॅप्टर आहे केनचा. हा जेव्हा मुलांना शिकवायला गेलो पहिल्या बॅचेस मध्ये, तेव्हा मलाच कळलं नव्हतं. आणि कुठलीही गोष्ट स्वतःला समजण्यासाठी वेगळं समजावं लागतं आणि दुसऱ्याला समजून देण्यासाठी वेगळ्या लेवल समजावं लागतं स्वतःलाच. कारण तुम्हाला ते स्वतःवर समजायचंय आणि दुसऱ्यालाही समजून सांगायचंय. तर मला हे सेंटेन्सच कळलं नाही. इंटेन्सिटी ऑफ पॉवर इज प्रपोर्शनेट टू द डिग्रीज ऑफ अप्रॉक्सिमेशन टुवर्ड्स प्रिमिटिव्ह सबस्टन्स. मला हे कळलंच नाही. पुन्हा मी वाचलं. आपण ब्रेक करतो, जसं आपण रुब्रिक ब्रेक करतो है ना, डिल्युजन, रॉंग, सफर्ट, तसं प्रत्येकाचा आपण ब्रेक करतो, प्रत्येकाचे शब्द शिकतो आणि सगळं एकत्र करून बघण्याचा एक ऍट अ ग्लान्स बघण्याचा प्रयत्न करतो. म्हटलं चला तसं करून बघू. तेव्हा सम 27 years बॅक व्हेन आय केम अक्रॉस दिस पर्टिक्युलर बुक. आता प्रॉब्लेम पुन्हा इथेच होता. इंटेन्सिटी शब्द इथे पण आला होता. सर ही वाली स्लाइड दिसते ना आता? Anybody please? Yes, visible. Okay. Yes, sir. Sir, you are saying only Hindi and English, please. Sorry sir. Only Hindi and English, please. असं म्हणतात काही लोक. अरे बरोबर. Okay, okay. Okay. So the intensity of power is proportionate to the degrees of approximation. Now let us break this sentence and try to get the answer, which will be a compass for all our cases we are going to see. This is not that you have not done it earlier in your practice. You have been doing this the same thing without knowing this sentence. But let us try to unbreak. Let us cut the ice first. Intensity of power. What is the power we have as a physician? What we can give to the patient? Anyone can just answer. What is this power we have as a physician? Exactly. What power we have is medicine. We cannot cure somebody that you will be fine, you will be free from disease and the patient will be all right. These babas can do, but we cannot do it. Number one. Number two, that medicine, if he keeps in his pocket, will he be cured? No, he has to take it. So the power has to be given. So the intensity of power is proportionate. Proportionate is, maybe it's a maths or some other science word, that proportionality. It is proportionate, similar. Similar words, it's not something new. So Kent has given you another word for similar. So this packet is proportionate. Okay. So intensity of power is proportionate to the, similar to the degrees of approximation. Now approximation means that it is approximately 210 gram. Not exactly, but very similar, very near to that. So in homeopathy we have similia similibus curanter, not equilia equilibus curanter. That is not isopathy.
It is similar. Okay, not same. Again, I want to break this particular sentence. The power of medicine is proportionate. It will be up, down. It will be proportionate. आप जितना प्यार करेंगे दूसरे को, दूसरा आपको उतना प्यार करेगा. This is the proportionality, isn't it? In proportion. आप उसको रिस्पेक्ट देंगे तो आप अगला आदमी आपको भी उतने ही प्रोपोर्शनेटली रिस्पेक्ट करेगा. ठीक है. टू द डिग्री ऑफ अप्रोक्सीमेशन. आप यहीं तक रुकते हैं. मेडिसिन का जो पावर है, मेडिसिन का जो पोटेंसी है, वो इतना रहेगा. उसके साथ मेडिसिन कितना डिग्री में सिमिलर था, उतना ज्यादा. फिर से देखते हैं. सपोज I have a particular case. I have selected drug A. Now this particular drug A is the proportionality of its similarity is more. How intensely the call was of lachesis. How intensely was the cause of lachesis. That intensely it should be, or in that power it should be administered. In other words, if the call was not great, the potency will be lower. When the call was great, the potency has to be great because it is proportionate. It is not inversely proportionate. It is directly proportionate. More the love you give, the more the love you get. You don't get hate. Prasad sir, Yes. please repeat this for everyone. Everybody, please understand this again and again. This is the core sentence of today's lecture. Yeah. See, we have to prescribe something in a power. We have how this particular medicine has been called by the system. For example, lachesis. इसलिए आगे का example मैंने lachesis का ही दिया, तो मैं इसलिए that's why I'm going again for the lachesis. You have a patient who has some symptoms of lachesis. Now we always do this, that we have to take down the rubrics of lachesis. Now these are the core of lachesis is matching with the core of the patient. What is his greatest concern is matching. Now I'm talking of Saigala. Otherwise, I would have given example of any other thing. If I'm talking on platform of PHF, so I have to be with specific. So I am specifically saying that how great was the call. For example, I will just make it simpler. Okay. Now my son is there in front of me. I'm calling him. Atharva, ikade. Atharva, please come here. आता हूं ना. Hello, Atharva, please come. आता हूं ना बाबा. Then I have to raise my voice. Atharva, please come here. हाँ बाबा आता हूँ. He starts. Now, Atharva, please come. See what happened. वो सब काम छोड़ के आ जाएगा. क्या हो गया बाबा? आपको 3 डिग्री समझ गई? 3 कॉल के Yes. एग्जांपल देखो. Yes, sir. कॉल Yes, sir. पहला शायद 30 था, दूसरा शायद 200 था, थर्ड 1M था. अब मेरे को समझ में आ रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ पावर क्या है. एवरीथिंग इज पावरफुल. 30 इज ऑल्सो पावरफुल. अथर्व, प्लीज कम. वो आ गया रहता. ठीक है, क्या हो गया? आते आते पानी का ग्लास लेके आ जाना. इतना कोई नहीं था. ही कुड इजीली गो. हाँ आता हूँ. मेरे को आना भी था तो वो लेके पानी का एक ग्लास लेके आ सकता था. तो कॉल वॉज नॉट सो. ठीक है. बट इन थर्ड it was urgent, it was required, so it was powerful. ठीक है. Try to understand these shades. Try to understand. उसको segregate करके देखोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी. ठीक है. Again I am reading this. Sorry. Intensity of power is proportionate to the degree of approximation.
अप्रोक्सीमेशन में सिमिलर, आपको लिखा रहता ना APROX अप्रोक्सीमेटली 910 ग्राम्स, नॉट एग्जैक्टली बट मिलता जुलता। तो आपका ड्रग कितना मिलता जुलता है, कम मिलता जुलता है तो डिग्री उसकी इंटेंसिटी की जो पावर है उसकी इंटेंसिटी कम रहेगी। ज्यादा मिलता जुलता है तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी, क्योंकि ये एक वर्ड यहाँ पे है प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट, इनवर्सली नहीं है। जो जितना सिम्टम्स सिमिलर ज्यादा उतना उस मेडिसिन का डिग्री ज्यादा, जितना डाउटफुल रहेगा उतना लोअर पोटेंसी में रहने का। इसलिए कैंसर केसेस में, टर्मिनेटेड केसेस में जहां टर्मिनल बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक चेंजेस हुए हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं, वहां पे क्या होता है, डिसीज सिम्टम्स ज्यादा होता है। जो नोजोलॉजिकली डायग्नोजेबल कंडीशंस है उसके सिम्टम्स ज्यादा होते हैं, जो कि हम लोग बोलते हैं कॉमन सिम्टम्स ऑफ द डिसीज। और पेशेंट के खुद के जो सिम्टम्स है, द सिम्टम्स विच आर ऑफ हिज ओन, जिनको बिना लिए हम लोग किसी को ठीक नहीं कर सकते, PQRS। पेशेंट्स के सिम्टम्स कम 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 हो जाते हैं और डिसीज के सिम्टम्स ज्यादा 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 हो जाते हैं, तो एक जो कॉल है मेडिसिन का वो डायरेक्ट और एग्रेसिव नहीं है, क्लियर कट नहीं है। कुछ सिम्टम्स इधर के जाते हैं, कुछ उधर के जाते हैं। तो इस कंडीशन में आपको मालूम है कि टर्मिनली केसेस में हम लोग पोटेंसी लोअर रखते हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि उसका जो कॉल है वो बहुत लाउड नहीं है, ठीक है। बट फंक्शनल में हम लोग 12 ऑब्जर्वेशन अगर टाइम मिलता है तो देख लेंगे कि जहाँ पे फंक्शनल डिसऑर्डर्स है, कहीं भी स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी नहीं है, थ्रेटनिंग भी नहीं है, ना प्रेजेंस है ना थ्रेटनिंग भी है, वहां पे आप 1M 10M दे दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बिकॉज द कॉल ऑफ दैट ड्रग वाज सो इंटेंस, इंटेंस मीन्स PQRS वाज मैचिंग। ये समझ गया सबको? मैं सिर्फ अभी अप्रोक्सीमेशन तक ही Yes, आया sir. हूँ, Yes, sir. यहाँ तक ही आया हूँ मैं, ठीक है। नाउ क्या approximation of what? Towards primitive substance, towards primitive substance. Now I have a primitive substance in me, please try to understand, I'm just making as simple as possible, ठीक है। अभी मैंने एक प्रतीक सर, आप है ना? Yes, sir. Absolutely. हाँ, अभी एक मैंने ऐड देखा था, एक मेरा ही स्टूडेंट है, उसने कुछ वो डाला था व्हाट्सएप पे कि लेंदी लेक्चर बिना लिए ऑर्गेनन समझा सकता हूँ। उसने वो एडवर्टाइजमेंट बनाया, मेरा ही स्टूडेंट है, लेकिन उसने बोला कि सिंपल लैंग्वेज में और लेंदी लेक्चर बिना लिए ऑर्गेनन समझा सकता हूँ, लेकिन मेरे को वो नहीं जमता। प्लीज थोड़ा सा लेंदी हो सकता है मेरा लेक्चर। सर एलेबरेट करो, आप अच्छे से एलेबरेट करो, सही चल रहा है एकदम, बिल्कुल। ओके ओके, ठीक है। प्रिमिटिव सब्सटेंस को देखते हैं। प्रिमिटिव मतलब समथिंग विच इज प्राइमरी, विच इज ओरिजिनल। रॉ मटेरियल लाएंगे तब जाके फाइनर मटेरियल बनेगा। नाउ अभी हम लोग समझ लिए एक चीज को, इसको गार्ड बांध लो, जितना कॉल उस मेडिसिन का ग्रेटर रहेगा उतनी पोटेंसी हाई। जितना कॉल डबियस रहेगा मतलब आपको वो ड्रग समझा नहीं इसलिए नहीं, आपकी पकड़ लैकेसिस की ढीली थी इसलिए आपको लैकेसिस वहां पे वैसा दिखा, ऐसा नहीं। वो आपकी, ये प्री सपोज कर रहा हूं मैं कि आपको ड्रग आता है, इसमें ऐसा नहीं चलेगा कि आप हर वक्त फिर वैसे ही उल्टा लगाओगे। This हाँ, I बराबर है। presuppose. Yeah. This is I presuppose that you know, but the call was not great. Not that the call was there and the physician couldn't take this call. Then the problem is with your homework. Before sitting on the chair of physician, you have to first finish your homeworks. So try to finish the homework first. And when I'm using this word that the call was not so clear, इट कुड बी आई थिंक पल्सेटिला और एक दूसरा कोई ड्रग था अभी मैडम ने लिया था। इन दैट केस ये भी हो सकता था, कुछ सिम्टम्स इधर के हैं, यहाँ तक दोनों की पिक्चर क्लियर है। ऐसे सिचुएशंस में आप खुद को लो रखेंगे विद द पोटेंसी, दैट इज व्हाट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज एक्सप्लेनिंग यू, ठीक है।
Now, too much primitive substance. Now, this particular से फॉर एग्जांपल आप लैकेसिस ही चल रहा है तो लेता हूँ कि लैकेसिस में इतना वो सस्पिशियसनेस, डाउटफुल, उसको डॉक्टर के भी ऊपर भी संशय होता है। तो ये है एक मेरे पास एक चीज है और एक लैकेसिस के वेनम में भी है। Now Kent is explaining these two primitive substances, that this particular problem with me as one dynamic thing and dynamic thing present in the venom which has taken by Herring. So these two primitive substances, the source of the what I can say, the source should be different. ठीक है, अदरवाइज होम्योपैथी वुड हैव बीन आइसोपैथी। आइसोपैथी में सोर्स जो होता है ड्रग का वो पेशेंट खुद होता है, उसके डिस्चार्जेस निकाल के ही दवा बनाई जाती है। होम्योपैथी में वैसे नहीं है, होम्योपैथी में सिम्टम सिमिलर होते हैं, सोर्स डिफरेंट होते हैं, सोर्स अलग है। मेरे अंदर जो आया है लैकेसिस के सिम्टम्स, वो डेफिनेटली लैकेसिस सुरुकुकुस स्नेक से नहीं आए हैं, तो नहीं तो मेरे को फिर वो ड्रग प्रूविंग में चला गया रहता मैं। वो डिफरेंट होने चाहिए। इट इज इफ इट इज अदर देन लैकेसिस बट लैकेसिस इट विल क्योर। जस्ट मेक इट वेरी बोल्ड इन योर माइंड। व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ प्रिमिटिव सब्सटेंसेस? दिस प्रिमिटिव सब्सटेंस मीन्स द सोर्स। ठीक है, अगर मेरे को कोई बोलता है कि नेचर्स लॉ ऑफ क्योर कंप्लीट है क्या, मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं है ना। नेचर्स लॉ ऑफ क्योर किसी को याद है क्या? कोई बोलेगा यहाँ पे प्लीज, अनम्यूट करके कोई बोलेगा नेचर्स लॉ ऑफ बोलो क्योर? रे, कोई तो बोलो। कोई तो बोलो, सगळे विसरले। एनीबडी, नेचर्स लॉ ऑफ क्योर? सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंट है ना? नहीं No, weaker dynamic. Top downward. Weaker It's dynamic principle, yeah. affection is permanently 26 extinguished by number. the stronger one, when which is the former हाँ, the latter बहुत is- दिन हो गए हैं। If the latter is If the very similar latter to is former stronger to the former in its manifestations. investigation. Yes. यस, चला 4-5 लोगों के कंट्रीब्यूशन से क्यों ना हो, एस्टेब्लिश तो हुआ वो। वेरी नाइस, रिवीजन हो गया सर। रिवीजन हो गया। इसलिए मैं कब से बोल रहा हूँ कि मैं कुछ नया नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ ब्रशिंग कर रहा हूँ, सिर्फ ऊपर का धूल थोड़ा निकाल देता हूँ, अंदर लिखा हुआ है सब वहां पे फिक्स है। थैंक्स टू द योर टीचर्स ऑफ ऑर्गेनॉमिक्स, थैंक यू। है ना। ठीक है, गुड। तो ये जो है विकर डायनामिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश, ठीक है, बाय द स्ट्रॉन्गर वन। ठीक है, प्रोवाइडेड जो आने वाला है वो पहले वाले से स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। सिंपल, वेरी हिंदी में जो पहले से है उससे आने वाला लेटर जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, लेकिन इन दोनों के सोर्सेस डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, ये प्रिमिटिव सब्सटेंस मतलब इनके सोर्सेस। मेरा जो फ्रिवोलसनेस है और बेलाडोना में जो है इनके सोर्सेस डिफरेंट है। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ primitive substance. So finally I'm reading again. So the intensity of power is proportionate to the degree of approximation. जितना similarity ज्यादा उतना potency ज्यादा। Very simple, उसमें कोई complication नहीं है। Simple हिंदी में बता रहा हूँ कि जितना similarity ज्यादा उतना potency ज्यादा, जितना similarity doubtful उतना नीचे नीचे आने का, ज्यादा हाई नहीं जाने का। ठीक है, केन ने फिर आगे बोला है देयर इज नो थॉट ऑफ इंटेंसिटी इन एनी अदर डायरेक्शन। दूसरा डायरेक्शन एक है मेरे पास 5 mg और 10 mg, ये मायने नहीं है होम्योपैथी के तो इंटेंसिटी को समझने के लिए। देयर इज नो थॉट ऑफ इंटेंसिटी इन एनी अदर डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन है जो उन्होंने दिया है। हम लोग सिर्फ जो सेंटेंस है उसको पढ़ने के लिए इतना टाइम लगा रहे हैं। आप सोचिए केंट साहब ने जब लिखा होगा तो what a great man, really I applaud for him। चलो नेक्स्ट जाते हैं। लास्टली उन्होंने बोला है, ये आज की इसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट सेंटेंस अच्छा है। द बैक्टीरिया में कंटेन ए कॉज
because causes are continued into ultimates. आपने पकड़ा बैक्टीरिया को और बैक्टीरिया को ही कॉज पकड़ा, ऐसा नहीं है. But the primitive cause is not the bacteria. The bacteria themselves have a cause. This should be clear to homeopath. The cause, according to the allopath, thing is a bacteria. But to be there as a bacteria, it also requires some cause. वो cause मैंने बोला था conditions. If your susceptibility is there, then these things will happen. If you are not susceptible, it will not. ठीक है. I'm just giving this particular diagram. इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? एक सर्कुलर मैंने कुछ राउंड्स बनाए हैं डिफरेंट कलर्स के. ठीक है, वेरी सिंपल. ये बुल्स आई आर्चरी वाला है. यस, बीच में 10 पॉइंटर है, 9 पॉइंटर, 8 पॉइंटर. ओके ओके, ठीक है. उसमें बुल्स आई जैसा दिख रहा है कुछ, उस तरह की डायग्राम है. आगे बढ़ते हैं. ये दिख रहा है ना सबको प्रतीक सर? यस यस. चलो, मैंने और एक सेकंड स्लाइड किया है. इन दोनों को थोड़ा सा मैंने कुछ एरो किया है. देखिए, ये एक एरो है बाहर की तरफ जा रहा है, लेकिन ये एरो जो है यहाँ नहीं है, यहाँ से ये बाहर जा रहा है. Yes. मतलब येलो से रेड, रेड से ब्लू, व्हाइट और ब्लैक की तरफ जा रहा है. Yes. ये भी सेंटर से पेरीफेरी की तरफ जा रहा है. Yes. सर्कमफ्रेंस की तरफ जा रहा है या बाहर की तरफ जा रहा है, सिंपल लैंग्वेज में. Yes. ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. No. चलते आगे. थर्ड स्लाइड मेरी ये बोल रही है कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो. These two things. एक और मैंने दो एरो लगा दी यहाँ पे. I want the viewers to concentrate on the gap. ये गैप को थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो इस लेवल पे, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो इस लेवल पे. एक तरफ ज्यादा, एक तरफ कम है. हाँ, तो जैसे मैं अंदर अंदर जाता हूँ, इन दोनों की लाइन का जो गैप है वो कम हो रहा है. हाँ. एवरीबॉडी ओके? राइट. जैसे मैं बाहर से अंदर जाता हूँ, सेंटर की तरफ जाता हूँ, इन दोनों के बीच की गैप कम हो रही है. Yes. और जैसे मैं बाहर आता हूँ ज्यादा, इन दोनों के बीच की गैप बढ़ती है. इसमें कोई ऑर्गेनॉन नहीं है, कुछ भी फिलॉसफी नहीं है, कुछ लॉजिक, नहीं है. सिंपल लॉजिक, ज्योमेट्री, सिंपल ज्योमेट्री है 10वीं 12वीं की, कि इन दोनों के बीच में इसको क्या टेंजेंट वेंजेंट बोलते हैं कुछ. उसके बाद मैथ छूट गया था मेरा, पता नहीं. तो इन दोनों के बीच में इतना कॉमनली समझ में आ रहा है कि डिस्टेंस कम है, और इन दोनों के बीच में शार्पली मुझे दिख रहा है कि डिस्टेंस ज्यादा है. अब मैं इस डायग्राम को यूज करता हूं जो मैंने पहले बोला. इस डायग्राम को यूज करता हूं जो मैंने पहले बोला. क्या बोला मैंने? कि जितना कॉल ग्रेट उतनी पोटेंसी ज्यादा, जितना कॉल कम उतना पोटेंसी कम. इंटेंसिटी ऑफ पावर इज प्रोपोर्शनल. आप समझ गया? Hello. Hello, sir. Try to understand the difference. The more the difference, clearly the picture will come out. More we are going with, there is a confusion. So the difference has to be there. Now I can easily differentiate the aconite from the belladonna because of their symptoms. If my patient has given much and more of the symptoms of belladonna, the belladonna will clearly stand off. Otherwise there will be confusion. Okay, so at the first level confusion, second level confusion, but when I'm going away in this black, I will give 1M, in this particular 230 somewhere, because more the confusion, more the belladonna and aconite will look similar. This is not vital force, this is not mental, this is, ये उसको देख के मत करो, confusion बढ़ेगा. एक simple bullseye दिया है मैंने. ये वो वाला डायग्राम नहीं है जिसमें वाइटल फोर्स सेंटर में होता है, कंफ्यूज हो जाओगे. ये सिंपल एक डायग्राम है कि जितना दो ड्रग एक में एक से दूर होंगे उतना पोटेंसी ज्यादा रहेंगी. यहाँ मैं एक्चुअली लिखना भूल गया, यहाँ शायद मैं 6 लिखता था रेड में, 200, 1M, 10M, CM जो भी लिखता था.
ठीक है, क्योंकि दोनों के अंदर गैप पोटेंसी से बड़ी है। तो जितना सिमिलर, जितना स्ट्रॉन्ग कॉल आएगा उस मेडिसिन के लिए, उतना हायर हम लोग को जितना डिस्टिंग्विश हम लोग कर सकते हैं क्लियर कट, Exactly. उतना हम लोग But- पोटेंसी पर ज्यादा रिलाई कर सकते हैं कि हम लोग हायर जा सकते हैं। एग्जैक्टली, और डिस्टिंग्विश कौन करेगा? PQRS। यस, PQRS ही डिस्टिंग्विश पेशेंट की करेगा। सिम्टम, Yes. नॉट डिसीज के सिम्टम। नहीं, कॉमन नहीं। एक चीज हो गई। दूसरा अपन हेड करते हैं रिपीटेशन, रिपीटेशन। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि Yes. रिपीट कहाँ रुकना है तो और कहाँ देना है। कहाँ देना है। और ये उल्टा ही होता है हमेशा, जहाँ रुकना होता है वहां दे चुके सनम। और ये सब प्रॉब्लम फिर इतना मिक्स हो जाता है। बट वन थिंग इज श्योर कि मेरे कम से कम प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि इस चीज का थोड़ा सा, अब उसका टीचर हो तो थोड़ा सा, बहुत सारे गए हुए केस मेरे को इस चीज समझने से थोड़ा मेरे केस सुधर गए। शायद मेडिसिन सिलेक्शन ठीक है नहीं है, जो भी है, जो भी मैंने सिमिलर के लिए अप्लाई किया, फिलोसॉफी साइकिल लगाया या और कोई सिस्टम लगाया, या एक क्लासिकल वे मिक्स करके फिजिकल मेंटल पर्टिकुलर्स एक टोटलिटी बना के, जो बोला है हनीमन ने कि टोटलिटी बनाओ फिफ्थ एफोरिज्म में, और देखो कि कौन सी मेडिसिन ज्यादा सिमिलर है। कोई भी पैटर्न लगाओ, लेकिन ये चीज आपको नहीं आती है तो यू मे हैव सो मेनी डिफिकल्टीज। सोचते हैं फिर क्या होना है इसका। यहाँ पे थोड़ा और एक 15 मिनट अगर आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेटली समझेंगे तो समझ में आ जाएंगी चीजें। थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं सिंप्लीफाई करने की इसको कोशिश करता हूँ। मेरे पास वैसा नहीं है कि लेंदी नहीं कर सकता, लेंदी होगा ही, उसको समझना पड़ेगा आपको। यहाँ पे उनका केंट साहब का मैंने एक सेंटेंस लिया है कि नाउ हियर वी माइट आस्क ए क्वेश्चन, व्हेन डज ए मेडिसिन दैट हैज बीन एडमिनिस्टर्ड ceases to be homeopathic। इसको मैं हिंदी में करता हूँ। हम अभी सोचते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने जो मेडिसिन दिया, एक डोज दिया किसी ड्रग का, वो कब होम्योपैथिक नहीं रहता या नहीं हो जाता है या होम्योपैथिक बनना बंद कर देता है, ceases to be homeopathic। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। when does a medicine that has been administered, जो दिए है, cease to be homeopathic। The same principle as to susceptibility must apply because of the similarity between the cure and contagion। ये उनका कंसेप्ट है कि जिस तरीके से पेशेंट बीमार हुआ है उसी तरीके से वो ठीक भी हो सकता है। ठीक है, ये एक कंसेप्ट है, अभी यहाँ उतनी जरूरत नहीं है, बट ये एक समझने के लिए। इलिस्ट्रेट कैसे किया उन्होंने? लेट मी इलिस्ट्रेट दिस इन दिस वे। सपोज एक डिप्थीरिया का केस है, वी हैव अ केस ऑफ डिप्थीरिया एंड आफ्टर ड्यू स्टडी लेकेसिस अपीयर्स टू बी द मोस्ट सिमिलर ऑफ ऑल मेडिसिन एंड ए डोज इज गिवन। यहाँ तक कोई कंप्लेंट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक चल रहा है कि केस टेकिंग लिया कोई भी अप्रोच से हो और सिमिलर लगा हमको लेकेसिस। अभी लेकेसिस का एक डोज दे दिया हमने उसको। ये डिप्थीरिया हो सकता है, आपके पेशेंट को कुछ भी हो सकता है, एनी डिसीज फॉर दैट मैटर। ठीक है, नाउ व्हेन डज लेकेसिस सीज टू बी होम्योपैथिक? लेकेसिस होम्योपैथिक रहना कब बंद कर देगा? नाउ दिस क्वेश्चन मेरे को भी समझा नहीं पहली बार कि ये बेसिकली है क्या। नाउ व्हेन डज लेकेसिस सीज टू बी होम्योपैथिक? आंसर है when the symptoms that indicated lecasis change, then it is no longer indicated। और हम करते क्या है? रिपीट द फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन, और लेकेसिस दो, और लेकेसिस दो। यस यस ये समझना पड़ेगा आपको। यस, आपके पास लेकेसिस के 1000 रूब्रिक्स है, 1000 सिम्टम्स है मेट्रामेडिका में। पूरा 1000 तो देगा नहीं पेशेंट, अब देगा तो मर जाएगा, है ना? Right, कोई right. जिंदा रह सकता है? लेकेसिस के 1000 सिम्टम्स लेके कोई जिंदा नहीं नहीं रह देगा, सकता, एग्जैक्टली। isn't it? और वो आपके पास भी नहीं आएगा, अगर रहेगा भी तो he will not come to you। ठीक है, तो आपके पास 3 चीजों को पकड़ के हेरिंग ने बोला है कि
इस धरती पे सिर्फ आदमी 2 पे खड़ा रहता है ज्यादातर, लेकिन बेस पक्का होने के लिए ट्रायो लगता है, इसलिए 3 जनरल्स मिलते हैं उसको दे दो, ऐसा हेरिंग का कहना था। ठीक है, तो सिम्टम्स इंडिकेटेड इट चेंज, देन इट इज नो लॉन्गर इंडिकेटेड। आपने लेखेसिस के 3 सिम्टम पकड़ के रूब्रिक दिया, मतलब प्रिस्क्रिप्शन किया, आपको देखना है व्हाट इज द अफेयर ऑफ दैट सिम्टम, व्हाट हैज हैपेंड टू दैट सिम्टम। एग्जैक्टली। वो उसका पैथोलॉजी लेके मत बैठो यहाँ पे। यस, सिलेक्शन ऑफ रूब्रिक, जो रूब्रिक्स पर सिलेक्ट करके मेडिसिन दिया है, ट्राई टू लुक इनटू दैट रूब्रिक्स। अभी खुजली कैसा है? खुजली कम है, वेरी गुड, वेरी नाइस। अभी उसमें से कि वो निकल के आता था जो डिस्चार्ज, नहीं नहीं डॉक्टर साहब वो भी ठीक है। अरे बट आपका बेस थोड़ी ना था वो, एग्जैक्टली। आपने वो स्किन और स्केलिंग और वो खुजली लेके नहीं अपने किया। इस एग्जैक्टली। सिस्टम में कम से कम मैं लेकेसिस जो मैंने दिया, वो 3 रूब्रिक जो थे मेरे, उनका क्या हुआ? एग्जैक्टली। जब तक ये असेसमेंट नहीं करेंगे आपको समझ में ही नहीं आ जाएगा। और यहाँ पे फिर और रिपीट करो, और एक डबल कंफ्यूजन कर दिया आपने, इससे बचना है आपको। इसलिए व्हेन द सिम्टम्स दैट इंडिकेटेड, आपने क्या इंडिकेशन दिया, वो 3 रूब्रिक का क्या हाल है, वहां चेंजेस आए हैं क्या? यस, देन इट इज नो लॉन्गर इंडिकेटेड। प्लीज दिमाग में डाल दीजिए इस चीज को कि जो सिम्टम थे जिसके ऊपर हमने प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड किया था, वो अगर वैसे ही है तो देखना पड़ेगा कि ये फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन था ही नहीं। ठीक है, बिकॉज इट हैज नॉट एक्टेड, it shows it has acted by making changes in the symptoms on which we based our prescription। ये समझना पड़ेगा। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है हमारा? if it is given at all after this change, it operates upon a different plane from what it did its homeopathicity। ये होम्योपैथिसिटी से वो दूर चले जाता है, और जो फर्स्ट डोज को जो माहौल मिला था एक्ट करने के, अंदर जाने के बाद, वो सेकंड डोज को नहीं मिलता, क्योंकि फर्स्ट डोज जाने के बाद उसने बहुत कुछ वहां रिपेयर कर चुका है। तो फर्स्ट डोज जो आपका मेडिसिन का है, वो सेकंड डोज को वैसा माहौल अंदर नहीं मिलता, और अगर सेकंड डोज को भी वैसे ही माहौल मिलता है, मतलब दिस इज द करेक्ट वे ऑफ रिपीटिंग द डोज। ठीक है, चलो। इफ इट इज गिवन एट ऑल आफ्टर दिस चेंज, इट ऑपरेट्स अपॉन ए डिफरेंट प्लेन, आर्टिफिशियल प्लेन, फ्रॉम व्हाट इट डिड इन इट्स होम्योपैथिसिटी। उसका होम्योपैथिसिटी नहीं रहता है। एंड इफ इट्स एक्ट्स एट ऑल, इट डज नॉट एक्ट क्यूरेटिवली बट डिप्रेसिंगली। ये केसेस को फिर निकालना मुश्किल हो जाता है, जहां अननेसेसरली हम लोग रिपीट करते हैं और रिएक्शन लाने के लिए। तो इससे बचना है आपको। ठीक है, आपको फिर उधर ही जाना है, जाके देखिए कि आपने इस ड्रग को आने के लिए कौन से सिम्टम्स का, कौन से रूब्रिक्स का सहारा लिया था, उनका क्या हाल है। वो उनका हाल चेंज है तो रुक जाओ, वो आज भी वैसे ही है तो उसका ड्रग कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, शायद हमारा कुछ सिलेक्शन सही नहीं है। ठीक है, any more than just enough to supply the susceptibility surplus and is dangerous। ये हमेशा याद रखना, होम्योपैथिक मेडिसिन चीप हो सकती है, फिलोसॉफी चीप नहीं हो सकती। any more than just enough to supply the susceptibility है, मतलब देते रहने का। I have seen some of the prescriptions, या क्या वो सीएम डेली दे रहे 1 महीने के लिए रोज। हाँ, खाते रहो, क्योंकि फर्क पड़ रहा है ना, तो ले लो। हाँ, उससे क्या होम्योपैथी से साइड इफेक्ट थोड़ी होते हैं। हाँ वही तो। एक याद रखिए दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन में और चावल में फर्क होता है। चावल हम रोज खाते हैं, उसमें कुछ भी मेडिसिन नहीं है, दैट्स अ फूड। और फूड खाने के बाद पेट भरता है, सिम्टम नहीं आते। सो चावल इज नॉट मेडिसिन, चावल इज फूड। होम्योपैथिक मेडिसिन इज नॉट फूड, इट इज मेडिसिन। तो उसको अच्छे से यूज करो, है ना। कुछ भी देने का मतलब that's not proper, that's not scientific also। Yes, I'm not saying we are doing, but we have to keep this in mind that we are giving something which is not food, it is medicine, exactly। isn't it?
So बहुत सारे any लोग सर, medicine- बहुत सारे लोग क्या करते हैं रिपीटेशन में कि थोड़ा पेशेंट को ना लास्ट टाइम मैंने लैक्टेसिस दिया था अच्छा लगा था, वापस रिपीट कर देते हैं। हाँ, उसमें इसमें आ रहा हूँ, एक हाँ सेंटेंस हाँ है, हाँ, यस। वो केंट का सेंटेंस है, वो हम सब के लिए, मैं भी उसमें आता हूँ, मैं वो सेंटेंस को बताऊंगा आपको, वो सेंटेंस बहुत अच्छा है केंट का, हंसोगे आप सब लोग। ठीक है। In chronic diseases, administer sulfur when it is clearly indicated and the symptoms disappear and the patient feels better. बॉस रुक जाओ, देखते हैं, ठीक है। Then the remedy cease to be homeopathic. अब वो सल्फर जाके कुछ करने वाली नहीं है वहां पे, यस। उसको जो करना था वो कर चुके सनम, अभी हम जा चुके सनम, अभी कुछ नहीं होगा। And if it is administered longer, whatever action it has is neither homeopathic nor desirable. ये सेंटेंस फिर से पढ़ता हूँ। Then the remedy cease to be homeopathic, and if it is administered longer, whatever action it has is neither homeopathic nor desirable. ना वो होम्योपैथिक है ना उसकी जरूरत भी है, और उसकी डिजायर भी नहीं है हमको, मतलब we don't want it. हाँ प्रतीक सर, but man argues, if little will do good, more will do more good. एक डोज देने से पेशेंट 50% ठीक हो गया, दो डोज देने से पेशेंट 100% ठीक हो जाएगा। दिस इज मोर लॉजिकल, ये लॉजिक एकदम पटता है अपने को। एक डोज देने से इतना ठीक हो गया, 10 डोज देने से 10 टाइम ज्यादा ठीक हो जाएगा, क्या करें अभी। लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं चलता है, तो आपका सेकंड डोज जाके उसको फर्स्ट डोज जैसा माहौल नहीं मिलेगा, तो वो उसको डिप्रेस ही करेगा। उसको क्योर को आपने एक्चुअली प्रोलॉन्ग कर दिया है, आपने उसको और एक्सटेंड कर दिया है, वो जल्दी ठीक होला उसको और उसको टाइम लगा रहे हैं आप, ये समझ लो। इनफ टू इफेक्ट ए चेंज इज ऑल दैट कैन बी होम्योपैथिक, बस इसको समझ लो आप। आपको क्या करना है एज ए डॉक्टर, उसके सिम्टम्स में चेंज लाना है। ठीक तो वो होने वाला है, आप नहीं ठीक कर सकते, आपको वाइटल फोर्स को थोड़ा धक्का देना है बस। स्टिमुलेट, हेलो यस हेलो हेलो यस बॉस, अंदर कोई है देखो। यस यस। इनफ टू इफेक्ट ए चेंज इज ऑल दैट कैन बी होम्योपैथिक, उससे ज्यादा कुछ करो मत। When certain changes are effected, then the physician must wait. मैं बच्चों को हमेशा सिखाता हूँ, WAIT नहीं करोगे तो WET हो जाओगे। पानी वाला नहीं, पसीने वाला। क्या करूं मैं? ओके चलो ठीक है, ऑर्गेनन में हंस रहे सब, वेरी गुड। सो इनफ मेडिसिन मस्ट बी गिवन टू एस्टेब्लिश ऑर्डर, है ना। कुछ भी है मतलब पूरा शेल्फ उतार देने का क्या उस पे, एंड दैट इज डन ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। अब इसके ऊपर इतना सोचो मत ना, क्या दूं, उसको फोन करो, इसको करो। अरे वो तुम्हारे उसमें क्या थॉट में क्या है, वो बैठता है उसमें, बता ना कौन सा ड्रग देना है, पेशेंट ऐसा बोल रहा है मेरे को, है ना। ये मत इंस्टेंटेनियसली, एट मोस्ट it is but a matter of few hours, and as long as order continues after it has once begun, जब काम शुरू हुआ है और Hands off. hands off, hello, hands off, I have nothing to hide, कुछ मत करो, उसको छोड़ो। पेशेंट को छोड़ने में ही पकड़ के रखना है, पेशेंट को पकड़ के रखोगे तो छूट जाएगा। हैंड्स ऑफ, डोंट डिस्टर्ब। सर केंट रेपर्टरी के इंट्रोडक्शन में लास्ट पैरा में ये दिया है, हैंड कीप हैंड्स ऑफ एंड गो फास्ट स्लोली। यस वेरी ट्रू, बरोबर है दादा सर। अभी एक थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं, there must be a change, a cycle which means a certain length of time। ये रिपीटेशन के लिए केंट साहब ने बोला है, there must be a change, a cycle which means a certain length of time। देखो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे उसको मेडिसिन दी थी, यहाँ पे मैंने उसको पेशेंट को ड्रग दिया था, yes. चलो लैकेसिस दे दिया, यहाँ कैसे रिपीट कर सकता हूँ मैं? जो सर्कमस्टांसेस यहाँ मिले, यहाँ पर आएगा तो ही कर सकते अगेन। हाँ, तो वो साइकिल में जाना पड़ेगा उसको, यहाँ भी आएगा वो, यहाँ भी आएगा वो, यहाँ भी आएगा, लेकिन जब यहाँ आ जाएगा तो अभी वो कोइंसाइड होगा।
तो सब चीजें पहले डोज की डिमांड कर रहा है वो, तो फर्स्ट सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में हम उसको वही दवा देंगे। ये दवा यहाँ नहीं दे सकते, यहाँ नहीं दे सकते, यहाँ नहीं दे सकते, सिर्फ यहाँ दे सकते, क्योंकि ये सिचुएशन जो है वो उस डोज के लिए हमने देखी थी कि लैकेसिस उसको 30 लेना है। यस, ये समझ लो आप लैकेसिस 30 यहाँ नहीं दे सकते, यही दे सकते आप। इसलिए when patient comes to standstill, मतलब यही आता है, when the medicine is not working, वहीं पे घूम के आता है, तो वही सिचुएशन में आपको उसको रिपीट करना है। So whenever a medicine ceases to be homeopathic, it is of no use to administer that medicine any longer. अब उसका पूरा जूस निकालोगे क्या? वो अभी कुछ नहीं दे सकता आपको, as it will act on the patient only upon an artificial susceptibility. वो और सिम्टम्स पैदा करेगा लैकेसिस का, आपको लगेगा कि ये सिम्टम्स और लैकेसिस के आ रहे हैं, उसको लैकेसिस देना चाहिए, वो अंदर जाके फिर से लैकेसिस का ड्रग प्रूविंग करेगा, आपको लगेगा देखो और कितना स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है लैकेसिस का, और पोटेंसी बढ़ा के दो, और इसमें सब मुश्किल हो जाएगा। फिर आर्टिफिशियल ससेप्टिबिलिटी पैदा कर रहे हैं आप लोग। इसको सिर्फ एक ही चीज तोड़ सकती है, वो है टाइम। उसको टाइम दीजिए, उसको थोड़ा सा, उसके बाद जो सिम्टम्स है वो चले जाएंगे, रियल सिम्टम बाहर आ जाएंगे। ये थोड़ा आपने प्रैक्टिस में समझना पड़ेगा। सर मुझे पूछना था प्लीज। सर, एक्यूट में, हेलो, हाँ सर, हाँ सर, एक्यूट में अपने को रिपीट करना पड़ता है। जैसे कल पेशेंट था जिसका बीपी 160/110 था। हाँ, उसको जैसे दवा दे दिया, दवा दे देने के बाद में फीलिंग में उसको आराम लगने लगा कि हेवीनेस जो था सर में वो कम होने लगा, लेकिन बीपी जो है वही थोड़ा सा और 160/100 इतना ही हो गया। तो ऐसे केसेस में रिपीट करना पड़ेगा ना, जब एक्यूट में? एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, सिम्टम्स डिमांड करेंगे ना। पैरामीटर्स तो आपके पास है, आपके अपने पेशेंट को पैरामीटर के ऊपर प्रिस्क्राइब किया ना, आपने पेशेंट को तो पैरामीटर के ऊपर प्रिस्क्राइब किया कि उसका बीपी बढ़ रहा है, बीपी इज वन ऑफ द पैरामीटर, बराबर है ना। लेकिन आपको ये देखो, बेसिकली टू बी वेरी फ्रैंक, बीपी और डायबिटीज में बेसिकली आपको कॉशियसली ही जाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा मतलब बोल देना पेशेंट को कि मैं अब मेरे पास आ गए हो, अब बंद कर दो दवा, सब एलोपैथिक सब बंद कर दो। मैंने खुद से कई बार केसेस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आया है। आई विल गिव यू वन एग्जांपल कि देयर वाज अ केस ऑफ पार्किंसनिज्म। अब पार्किंसनिज्म आपको पता है कोई एक्यूट इमरजेंसी कोई केस नहीं है। आप डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, आप जिन्होंने क्वेश्चन हाँ पूछा? सर, आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन आल्सो। यस सर। ये केस मेरे पास आया तो मैंने उसको बोला कि आप वो सिंडोपा बंद कर दो। सिंडोपा बंद करने उसको बोल दिया। वो पेशेंट एक लेडीज थी, वो प्रोग्रेसिव पार्किंसन डिसीज की थी। आई एम शेयरिंग माय फेलियर्स, मतलब पेशेंट को कितना तकलीफ हुआ मेरे एक गलत डिसीजन की वजह से। उसको हमने बंद करा दिया, जो लीवोडोपा था उसका बंद कर दिया। उसको बंद करने के बाद उसको लीड पाइप रिजिडिटी आई। लीड पाइप रिजिडिटी आप समझते हैं, जैसे कि पाइप को हम लोग बेंड कर रहे हैं, उतना ज्यादा उसको ज्यादा आ गया। मैंने उसको जो भी दवा देनी थी हो गई, बट उसके बाद पेशेंट को कॉफी ग्राउंड लाइक वॉमिटिंग हुई एंड पूरा उसका बदन पूरा मतलब वो वॉमिटिंग इतनी प्रोजेक्टाइल और इतनी ज्यादा उसको स्ट्रांग हुई। देन मुझे लगा सही ना सही कुछ, क्योंकि आप फिर इसको लेंगे कि एलिमिनेशन हो रहा है। वेरी गुड, होम्योपैथी दवा देने के बाद उसको एलिमिनेशन चालू हो गया है, बीमारी सब निकल रही है। मैं बोला इसका जनरल ठीक नहीं है, इसका मेंटल सब डिस्टर्ब है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं सर्च किया, सर्च करने के बाद मुझे एक एंटिटी मिली जो सिर्फ 6 केसेस या 7 केसेस, उसमें से 2 केसेस इंडिया से रिपोर्ट हुए हैं, विच इज कॉल्ड एज अ टॉक्सिक पार्किंसन डिसीज। तो ये जब पार्किंसन डिसीज टॉक्सिक हो जाता है तो उसमें इस तरह के वॉमिटिंग और ये सब प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग के सिम्टम्स आते हैं, और डिसीज है एक्यूट, इज एन इमरजेंसी। दिस केस यू कैन नॉट ट्रीट ऑन ओपीडी बेसिस। You will not believe, my dear friends, I had to refer that case to a neurologist. तो उसने बोला ये क्या कर रहे थे आप, आपको समझ में नहीं आया, ये प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हुआ।
इसलिए नॉलेज ऑफ मेडिसिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इम्पोर्टेंट। मेडिसिन में आप थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है पेशेंट का बीपी आपका बढ़ा हुआ है, लेकिन मेरा एक ही कहना है कि उसके बाकी पैरामीटर्स ठीक है तो आप आगे चलेंगे। हाँ सर, सबसे यानी क्या है, उसका बीपी का गोली चालू था, लेकिन जब मेरे पास अचानक आया, वो बीच में दवाई के लिए नहीं आया, और जब कल आया तो मैंने बीपी लिया तो बीपी इतना हाई था, तो उनको वहीं बिठा के दवा दे दिया, तो उनको जनरलाइज भी बहुत अच्छे लगने लगा, और हाँ बीपी तो ठीक थोड़ा है सा ना। नीचे देखो का डॉक्टर साहब, कम आया। आपको एक ही तो चीज बताता हूँ, तो ये यहाँ से पूछना था कि इस हाँ केस में जैसे है कि जैसे 30 दिया था, वाटर डोज दिया था, काम किया, तो उसको और रिपीटेशन की जैसी जरूरत पड़ सकती है क्या? जैसे बीपी नहीं दवाई नहीं नहीं काम कर रही है। नो वे। आप ये देखिए, यहाँ से पेशेंट यहाँ पे एक्यूट डिसीज में 1 घंटे में भी आ सकता है ना। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि इसको यहाँ पे आने में पूरा दिन लगेगा या 10 दिन लगेंगे? एक्यूट डिसीज में ये लेवल जो है पेशेंट का रिपीटेशन का, वो 1 घंटे में भी आ सकता है। वही, आई एम नॉट अगेंस्ट मेकिंग रिपीटेशन। ऐसा कोई जनरल नहीं बनाओ आप कि पेशेंट एक डोज में ठीक होता है। अगर पेशेंट एक डोज में ठीक होता तो थर्ड एफोरिज्म में हनीमन बोलते ही नहीं थे कि नॉलेज ऑफ डोज एंड नॉलेज ऑफ रिपीटेशन ऑफ डोज। लेकिन कहाँ पे देनी है कहाँ पे नहीं देनी है, यही सीखने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। राइट सर। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वी आर क्योरिंग एवरी पेशेंट विद सिंगल डोज एंड सब ठीक हो गया। वी नीड टू रिपीट। Yes. और And philosophy Dr. Ganesh, I want to add one more thing. प्लीज डॉक्टर। If your patient, जो तुमने पेशेंट का 160/110 बीपी देखकर दवाई दी थी, या उसकी केस लेकर दवाई दी थी, अगर Exactly. केस के जो रूब्रिक्स आए थे, वो रूब्रिक्स पर अगर पेशेंट अगर ठीक है, अगर पेशेंट उस पर ठीक है, तो यू नीड नॉट रिपीट। जैसे ये सर बोल रहे वापस कि ये साइकिल वापस जब भी कंप्लीट होगा तभी रिपीट करना है, इट इज सिंपल। तो अगर आप रूब्रिक्स पर प्रिस्क्राइब करोगे and you will assess your patient on the BP, then there will be confusion. वो नहीं, एक सिचुएशन जो है ना, बीपी हाई था, दिया दवा तो अपना रूब्रिक के ऊपर ही दिया था, उसको अंडरस्टैंड करके ही दिया था, जिससे उनको 10-15 मिनट में 20% वो होल आराम मिला, और वो बीपी भी थोड़ा सा जो है वो नीचे आ गया, 110 से 100 तक आ गया, वो आराम हो जाएगा आगे। मैं ऐसे ही पूछा था, जैसे ऐसे सिचुएशन रहते हैं तो कभी कभी हमें तो एग्जैक्टली ना, ये सिचुएशन में जैसे सर बोल रहे हैं कि यहाँ पर वापस पेशेंट जब भी करना पड़ सकता है। जैसे बीपी हाई है, उसका रिक्वायरमेंट कितना है? डॉक्टर आपको पेशेंट को ठीक करना था कि बीपी कम करना था? पेशेंट का जो इमरजेंसी केस था सर, पेशेंट को जो तो आप रिक्वायरमेंट, बीपी को, आप पैरामीटर बीपी का अप्लाई कर रहे हो ना? हाँ एग्जैक्टली। देखो सर, मैं क्या कर रहा हूँ, उनको मैंने 30 वाटर ही दे दिया, लेकिन मैं यहाँ पे जैसे कुछ केसेस जो मैंने सुने थे ना, जैसे उसमें उनको रिपीटेशन की जरूरत हो सकती है, एक्यूट कंडीशन है, और पेशेंट और जो है सेटल नहीं हो रहा है, तो किस किस केस में बोला गया है कि उसको आप रिपीट करो, एक्यूट में रिपीट कर सकते हैं इन वाटर डोज। इसलिए मैं पूछ रहा था आपसे क्लेरिफाई करने के लिए। नहीं बोला गया नहीं है। आई एम हियर विद द एविडेंस। Yes, sir. I am not here what others are doing. I am Yes, here to exactly. say what is the way of doing Organon, it. yes, exactly. आणि गणेश, इथे सरांनी सांगितलं ना, एब्सोल्युटली यहाँ पर बोल रहे सर कि ये आरएक्स का जो पहला सर्कल है, वो सर्कल पर पेशेंट जब भी आएगा, यू हैव टू रिपीट, सिंपल, इट इज सो सिंपल। अभी अक्यूट में हो या क्रोनिक में, अक्यूट में इट इज, ये आधे घंटे में आ सकता है, 1 घंटे में आ सकता है, 2 घंटे में आ सकता है, 6 घंटे में आ सकता है। यू कैन, योर रिपीटेशन शुड बी बेस्ड अपॉन दैट कि तुम्हारा पेशेंट, तुमने जब भी केस लिया था तभी कैसा था, वापस उसी सिचुएशन में आ रहा होगा, तभी रिपीटेशन करना है। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट द लेक्चर इज अबाउट। वही मुझे वही बताना है कि एक्यूट में जैसा है, अगर हम क्या मान के चलते हैं कि सिंगल डोज है, ओनली 3 देना है, बस करो, लेकिन जब पेशेंट की रिक्वायरमेंट एक्यूट में ज्यादा रहेगी, it is not patient, Dr. Ganesh, it is not like that. patient who will decide, not me. Yes, patient decide करेगा कि उसको कितना चाहिए। देखो सर, मैं प्रसाद सर, ये क्या है कि थ्योरी एंड प्रैक्टिकल आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। नहीं ऐसा मत बोलो एकदम से सर। लेक्चर ही नहीं लेना पड़ेगा, ऐसे तो बंद करना पड़ेगा मेरे को। सर मैं क्या सोच रहा था, जैसे बताते हैं कि वही मैं जो आपने थ्योरी में जो बताया ना, एक्चुअल प्रैक्टिकल में क्या होता है, जैसे कि पेशेंट का रिक्वायरमेंट है, दवा दिया, उसको ठीक आराम लगा, और 2 घंटे के बाद में ही वो वही
स्टैंड या वही सिम्टम पे या अभी वही एक काम करो आ सर, सकता है? आपके केस में उसको डेली 2 घंटे में दवा चालू करो, फिर देखो क्या होता है। जरूरत नहीं है तब भी, जब दवा देने के बाद क्या होता है आपको डेमोन्स्ट्रेशन मिल जाएगा, लेकिन वो Yes. पेशेंट हट जाएगा बेचारा। सर Yes. सर प्रसाद सर प्रैक्टिकल और थेरी ऐसा नहीं है, व्हाट इज सर मैं रिटन क्या इन द बात कर रहा थ्योरी। हूँ, आप सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ कि एक्यूट में जो है जैसा है हमने दवा दे दिया है, पेशेंट को आराम लगा, अगर वो फिर से वही सिम्टम पे आता है जैसे आपने बताया, मुझे खाली ये बताने का था कि जो कभी कभी मान के चलते हैं ना हम वेट कर सकते हैं, अगर पेशेंट जैसे बोला है कि फिर वो कंडीशन पे आ जाता है, उसको वैसा तकलीफ होने लगता है, वो वही रूब्रिक वही इंटेंसिटी से दे सकता है, तो एक्यूट में जल्दी भी दे सकता है, तो एक्यूट में हमें रिपीट करना पड़ सकता है, ये मुझे खाली बोल देने का था, बाकी कुछ नहीं। डॉक्टर, मैं यही बोल रहा हूँ, यहाँ से Dr. Prasad is पेशेंट saying that only. पूरा Yeah. चक्कर मारने को पेशेंट को जो कंडीशन है, वो Time 1 is घंटा भी लग invariable. सकता है, 1 घंटा Invariable भी लग time. सकता है। Yes. 1 घंटे में आपको देखो, 6th ऑब्जर्वेशन ऑफ केंट अगर आप पढ़ेंगे, 2 शॉर्ट रिलीफ ऑफ द सिम्टम्स, Yes. 6th ऑब्जर्वेशन ऑफ केंट, इसलिए क्योंकि एक्यूट कंडीशंस में आपका जो डिसीज है पेशेंट का, वो दवा बहुत जल्दी खा चुका रहता है, ये वर्ड है उनके, एग्जॉस्टेड, ईटन अप। The acute condition, the plethora, the inflammation is so intense that eats up the disease, eats up the medicine, and you have to repeat it. खा चुका रहता है तब तक आपको रिपीट करना पड़ता है। और Right. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि क्रॉनिक डिसीज में सिंगल डोज देके पेशेंट ठीक होते हैं और एक्यूट में आपको रिपीट करना करना पड़ता पड़ता है। है, not necessary. ऐसा कुछ नहीं है, Not necessary. जस्ट ऐसा कुछ है तो आप प्लीज इसको करेक्ट कीजिए। इट इज द पेशेंट हु विल डिसाइड, एज द हंगर डिमांड्स द फूड, सर प्रसाद सर मैं मेडिसिन। वही कह रहा था कि खाली जो Yes, है yes. हम जो रिपीट करने का जो रहता है Yes. फास्ट भी हो Yes. सकता Yes. है। Ganesh, we और got your point. We got your point. I think Yes, yes. we should continue with the lecture. Yes, yes. Just Yes. I'm just finishing it again. Yeah. Second prescription, second proposition for repetition of first prescription is when the case assumes a standstill position. अब ये एक्यूट में भी हो सकता है, क्रॉनिक में भी हो सकता है। एक चीज और 2 मिनट में आपके लेना चाहता हूं कि होम्योपैथ एक्यूट और क्रॉनिक शब्द से क्या समझता है। हाउ ए होम्योपैथ एंटरटेन्स द वर्ड एक्यूट एंड क्रॉनिक, ये भी आपको समझना पड़ेगा। आप लोग एक ही पैरामीटर लगाते हो टाइम का। पेशेंट जब बोलता है कल सवेरे से बुखार आया तो आप एक्यूट डिसीज बोलते हो, और 10 साल से है तो क्रॉनिक लगाते हो। सही है, गलत नहीं है, लेकिन ये नहीं हो सकता। आपको लगाना पड़ेगा सेकंड पैरामीटर जो यहाँ पे बोला गया है, वो है स्ट्रक्चरल चेंजेस का। आपके पास एक्यूट डिसीज में आप क्यों बोलते हो कि हायर एंड हायर पोटेंसी दे सकते, क्योंकि वहां स्ट्रक्चरल चेंजेस की संभावना कम रहती है, क्योंकि सब कुछ अभी स्टार्ट हुआ है। लेकिन क्रॉनिक में स्ट्रक्चरल चेंजेस की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए जहां तक एक बोला जाता है कि लो पोटेंसी दो। बट जनरली आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि एक एक्यूट केस आया है, उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस है, तो वहां आप 30 दोगे। और आपके पास ये भी हो सकता है कि एक क्रॉनिक केस आया है 10 साल से, लेकिन कुछ भी उसको स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं है, उस केस में आप हायर पोटेंसीज भी जा सकते हो। कुछ भी फिक्स नहीं है यहाँ पे। लॉ ऑफ सिमिलिया छोड़ने के बाद होम्योपैथी में कुछ भी फिक्स नहीं है, सब पेशेंट के ऊपर डिपेंड है। इसलिए हमारी होम्योपैथी जो है वो टेलर मेड शर्ट बनाती है, रेडीमेड नहीं। Yes. जैसा Absolutely. पेशेंट होगा वैसा उसको ट्रीटमेंट करेंगे। एक प्रोटोकॉल लेके यहाँ नहीं जा सकते। Yes. ये प्रोटोकॉल टूट सकता है पर्टेनिंग टू द पेशेंट। सामने Patient. बैठा हुआ जो है उसके हिसाब से हमको करना है सब चीजें। बट हमारे पास कौन से चीजें हैं, कौन से पैरामीटर है, उसका हमको बड़ा नॉलेज भरपूर होना चाहिए कि कौन से केस में क्या लगाना है। लेकिन पाने कौन से इतना मालूम होना चाहिए। फिर कौन सा पाना फिट होता है बाद में देखेंगे। Yes. Okay, this is the state when after required wait and watch, the amelioration is not progress and certain level. ये कितना वेट करेंगे, कितना भी वॉच करेंगे तो पेशेंट एम्बुलेशन तरफ नहीं जाएगा, वो है ये स्टैंड स्टिल। ठीक है। नाउ रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपको एक दे रहा हूं मैं। व्हेन द ओरिजिनल सिम्टम रिटर्न्स, ये जो मैंने सर्कल बनाया था ओरिजिनल, ये ओरिजिनल है।
ये सब ओरिजिनल नहीं है। जहां पे वो फिर से वापस आएगा तो यू हैव टू रिपीट द सेम मेडिसिन व्हेन द केस बिकम्स अ स्टैंड स्टिल। ये सिर्फ 2 ही कंडीशंस है जहां पे आपको रिपीट करना है। उसके बाद आप सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वो कॉग्नेट प्रैक्टिकल आप देखेंगे कि वो ठीक है, केंट साहब ने लिखा है, बट वो उतना कोई हम यूज नहीं करते। हाँ, इस पर्टिकुलर इसमें कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन वगैरह भी साइकिल में मैंने देखा, और उस दिन प्रतीक सर ने भी बोला कि वी डोंट हैव दैट पर्टिकुलर थिंग हियर। तो मैंने वो सब चीजें छाट दी है लेक्चर को छोटा बनाने की, इसमें ज्यादा लेंदी ना हो, तो इसलिए मैंने ये 2 ही रखा है कि फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन आपको रिपीट करने के, ये बिल्कुल समझ लीजिए कि ओरिजिनल सिम्टम, जो ओरिजिनल सिम्टम मतलब जब फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन के वक्त के जो सिम्टम्स है वो फिर से रिटर्न आ गए तो अपने ऊपर शाबाशी ले लो। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि पहला प्रिस्क्रिप्शन आपका 100% करेक्ट था। Return of original symptom always presupposes that you are a good doctor, that the first prescription which has given has worked, but now it has exhausted, तो एक 2 धक्का लगाना पड़ेगा दूसरा, ठीक है। या जो हमने एक अभी बोला केन का सेंटेंस, eaten up when the case becomes standstill, because पेट्रोल ही नहीं है। अब पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी कैसे चलेगी? जहां है वो गाड़ी रुक जाएंगी, स्टैंड स्टिल। अब पेट्रोल की गाड़ी है तो उसमें डीजल तो नहीं डाल सकते। लैकेसिस की केस है तो बेलाडोनासी ठीक नहीं होगी ना। पेट्रोल की गाड़ी है तो पेट्रोल ही लगेगा, तो पेट्रोल डालेंगे तो गाड़ी स्टार्ट होगी। कुछ भी लिक्विड डालने से स्टार्ट नहीं होगी गाड़ी। पेट्रोल गाड़ी है तो पेट्रोल से स्टार्ट होगी, डीजल है तो पेट्रोल डाल के कुछ नहीं होगा, लैकेसिस की केस है तो बेलाडोना देके कुछ नहीं होगा। ये आपको समझना पड़ेगा। सो व्हेन द केस बिकम्स टू ए स्टैंड स्टिल, बट ये थोड़ा आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। स्टैंड स्टिल मतलब क्या है, पेशेंट तब क्या बोलता है, दिस वी कैन गो थ्रू प्रैक्टिकली, और बहुत अच्छे से इसको केस हम हैंडल कर सकते हैं। सो दिस कुड बी, इसके क्या रीजन है, द पोटेंसी नीड टू बी एडवांस फर्दर। अब यहाँ से आगे जा सकते हो। मैंने बोला था 50 मिलीसिमल में कि वाइटल फोर्स वही पोटेंसी दोबारा नहीं लेता, इट नीड टू बी फर्दर एडवांस्ड, ठीक है। द डोजेस आर टू बी रेगुलेटेड, कितना डोज दिया आपने वो भी आपको रेगुलेट करना पड़ेगा कि क्या आपने लास्ट ईयर के प्रिस्क्रिप्शन से क्या सीखा। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये हम लोग बहुत अच्छे से इग्नोर कर देते हैं, पेशेंट को आराम नहीं हुआ उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी हम हमारे ऊपर लेते हैं, ये हमसे ही कुछ हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। द एक्साइटिंग एंड मेंटेनिंग कॉजेस नीड टू बी रिमूव्ड। पेशेंट हाफ ट्रूथ बताता है, कभी कभी बताता नहीं है, कुछ तो भी खाते पीते रहता है, ये वो उधर का चूर्ण खाता है, उधर का वो खाता है। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा कि उसकी कुछ आदतें ऐसी होती है कि वो फैनिंग द फायर हो जाती है उसके केस में। तो समटाइम्स अगर थोड़ा उसको पूरा, कभी कभी पेशेंट को टाइम रहा तो मैं पूछता हूँ कि भाई आप सवेरे से रात तक क्या करते हो, थोड़ा बताओ, आपका रेजिम क्या है। तो कभी कभी उसमें समझ में आता है कि उसमें कुछ पॉइंटर्स है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो उसको नहीं करनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हो पेशेंट को कि भाई आपकी दिनचर्या क्या है, थोड़ा बताओ जल्दी में। सो अगर उसमें ऐसे कोई चीजें है, आप एक्सरसाइज कुछ है ही नहीं, वो बस उठता है, काम करता है, बैठे रहता है दिन भर और सो जाता है, तो आपको उसको थोड़ा पीस ऑफ एडवाइस देना पड़ेगा, भाई आप थोड़ा वर्कआउट कीजिए। दैट कैन बी डन। I think we are not going for 12 observation, it will be too much lengthy, and I think better we will stop here. ठीक है प्रतीक सर? Yes sir, no problem. Because it's already too much time. If you want, I can go for all the 12 observations. If you want, I can read them out if you want. Sir, we will take another lecture for 12 observations. Because that's a I very think lengthy yes. Because that assessment should be properly understood. The 12 observations, they are very important. I guess Dr. Sheetal has some question. Raise hand in between. Raise their hand. Yes, Dr. Sheetal. सर मला 2 क्वेश्चन आहेत. जनरली स्किन डिसीज मध्ये लोअर पोटेन्सी पासून सुरुवात करायची असं मी ऐकलंय, मग ते खरं आहे का? आणि दुसरा एक क्वेश्चन आहे, समजा एखाद्या पेशंटला 2 कंप्लेंट आहे आणि आपण 30 ने मेडिसिन सुरू केले, एक
कंप्लेंट त्याची झाली क्युअर आणि दुसरी तो म्हणते नाही मॅडम त्याला फरक नाही पडला, तर मग सेम कंटिन्यू करायची का हायर पोटेन्सी द्यायची? प्रश्नच आपण थोडस बदलून घेऊ ना. प्रश्न बदला. जो आहे ना, तुम्ही पहिल्याच तुमचा बेस आहे कुठतरी ऐकलंय. आता मी एवढं सांगितलं तुम्ही ऐकलं नाही आणि ते ऐकता राव तुम्ही. कळलं का? प्रश्न हो. तो नाही आहे. आपले ह्या ज्या काहीतरी चालीरीती करत आलेले आहेत ना, ते Yes. सोडा तुम्ही. Yes, इकडे सगळं yes, क्लिअर कट लिहिलेलं आहे. exactly. क्लिअर कट सगळं लिहिलेलं आहे. आपल्याला जे प्रॉब्लेम आता येतात आहेत ना डॉक्टर, त्यांना ते- अगोदर आ हा. चुके सनम आहे ते सगळं. त्यांना सगळं झालेलं आहे. 7-8 लोकांचे त्यांनी- वेगवेगळे गोष्टी ऐकून आपलं झालेलं आहे. प्रत्येकाचं वेगवेगळं मत आहे, की कोण म्हणतं लो द्या, कोण म्हणतं हाय द्या. म्हणून आपण हे खास ऑर्गॅनिकचं लेक्चर अटेंड केलं डॉक्टर शीतल, की मी बाबा तुम्हाला एक सांगतो, माझ्याकडे हा. एक पेशंट तो आला होता की डॉक्टर साहेब तुम्ही ते 50 मिलीसिमलचं म्हटलं होतं, तो नाही का तुम्हाला मागे सांगितलं मी. तो म्हटलं की हे तुम्ही जे सांगताय की एक चम्मच घ्यायचं आणि बाकी फेकायचं, तर तुम्ही मला सांगितलंच नाही की हे पाणी कुठल्या दिशेला फेकायचं. अरे म्हटलं यार, त्याला हसताही नाही येतात. आपला पेशंट समोर असतो, त्याला वाईट वाटते की डॉक्टर कसं काय असं हसून राहिलं आपल्या याच्यावर. म्हटलं आय एम व्हेरी सॉरी, कारण हा खूप मोठा म्हटलं एक राहण्याचं सांगायचं राहून गेलं म्हटलं. तुम्ही म्हटलं नैऋत्येकडे तोंड करायचं आणि दक्षिण दिशेला फेकायचं म्हटलं ते. तो इतका खुश झाला माहिती का. आणि पेशंट दुसरा होते, माझ्याकडे आई आली, तिने खूप डोकं खाल्लं. एन्युरिसिसची केस होती, मुलाला होत होतं एन्युरिसिस. म्हटलं याच्यात काय केलं पाहिजे? अहो म्हटलं काही खायला नाही, काही नाही, ठीक होऊन जाईल. तरी ती म्हटली की काय केलं पाहिजे, अजून काय खबरदारी घेतली पाहिजे. मी म्हटलं या औषधी द्यायचं असेल तुम्हाला तर एकच गोष्ट सांभाळा. मेडिसिन द्यायच्या आधी त्याला कमीत कमी 2दा तुम्ही त्याला लघवीला घेऊन जा. त्याचं एन्युरिसिस थांबलं. कळलं का? कधी पण रात्री वाटलंच त्याला, कारण त्याला नंतरच व्हायचं. म्हटलं मग रात्री त्याला कधी वाटलं तर औषध द्यायच्या आधी त्याला आधी लघवीला सू करून आणत जा. मग आता काय राहिलं त्याच्यात आता. कधी कधी आपल्याला असं टॅक्टिक लावावं लागतं प्रॅक्टिसमध्ये. कधी कधी आता तो पेशंट सांगतोय की हे कुठल्या दिशेला फेकू, आता काय फरक पडतो. तसंच डॉक्टर आता कोणी काय म्हणतंय ते आपल्याला आता काय व्हॉट वी डोंट इनकल्केट मत करो. इन द लाईट ऑफ लॉजिक, इन द लाईट ऑफ द स्टॉलवर्ड्स, आई एम गिविंग यू with the words without changing the comma and the full stop. I am giving you as this word. इसलिए मैंने आपका आज का जो लेक्चर है उसी पे लाके रखा है, मैंने उस स्लाइड पे लाके रखा है कि ये आप समझिए. This we need to inculcate it our practice. Yes. This is the core. और सेकंड आपका डॉक्टर क्या था? 2 कंप्लेंट्स है, एक कंप्लेंट ठीक हुआ लेकिन दूसरा नहीं ठीक हो रहा है. तो कंप्लेंट क्या करना है उसको अपने को तो उसका स्टेट पे जाना है ना. और पहली कंप्लेंट ठीक हो गई मतलब दवा एक्ट कर गई ना. तो मैंने वही तो बताया था एक स्लाइड में कि जो मेडिसिन एक बार काम कर गई उसके बाद आपको कुछ करना ही नहीं ना. हे बघा, when the डॉक्टर शीतल, येस येस सर. when the symptoms that indicated it change, तो आपके केस में 50% है, बहुत अच्छा है. हमको तो 2% दिख सकता. आधा ठीक हो गया ना पेशेंट आपका. एक कंप्लेंट ठीक हो गई, दूसरा रह गया उसका. आपको करना क्या है, ये करना है आपको, ये हैंड्स ऑफ. Hands यस, off. एसएल. यस, मैं वही बोल रहा था, एसएल. बस ये है आपका एसएल. ये करना है आपको. ठीक है. ओके, माझं मिस झालं ते मध्ये, मी ऐकलं. बरोबर, नो ओके, प्रॉब्लेम, नो प्रॉब्लम, नो नो प्रॉब्लम. प्रॉब्लम मॅडम. चलो ठीक है प्रतीक सर. Yes, yes, sir. Yes, sir. I'm going to upload this lecture as soon as Okay, possible. okay. I might be today or tomorrow only, because it is a very, very important lecture, and you should understand and listen to it over and over again, so that your practice है ना, ऐसे कुछ problem ना आ जाए कि यार अब क्या करें, तब क्या करें, अब क्या करें, तब क्या करें. तो it is actually हमेशा हमारे कान में बजते रहने चाहिए डॉक्टर व्यवहारे. यार बस, ये एक सेंटेंस है. वो सेंटेंस जो मैंने बोला था सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस था उनकी पूरी स्लाइड का. ठीक है. दैट इज द जिस्ट ऑफ टुडेज लेक्चर. एंड थैंक यू डॉक्टर व्यवहारे, एंड थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स फॉर पेशेंटली हियरिंग द ऑर्गेनल लेक्चर आउट. Thank you very much. And it is Dr. Vyavara's beauty. Dr. Vyavara's beauty it is that is the people are trying to hear it patiently. Okay. Okay. Thank you everyone. I'll upload this lecture as soon as possible. And if you have any more doubts, then please address it on the group. Yeah, we will yeah. try to answer it. Yeah. Definitely. Bye bye. Okay. Thank you, sir. Thank you very much. Bye.